Hello and welcome students to my channel Manthan Matrix, and today's video is for class 9 chapter number 6 lines and angles. So in my previous video we have discussed exercise 6.1 and now we are going to discuss exercise 6.2, but before that we will study some concepts of lines and angles. In this video we will cover parallel lines, transversal, corresponding angles, alternate interior angles, alternate exterior angles, consecutive angles, allied angles और four interior angles. तो ये सारे एंगल्स के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं. तो हम ये सारी चीजें यहाँ इस वीडियो में कवर करेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2. So see one by one. First of all, first one is parallel lines. We have already discussed in the previous classes what are parallel lines. The lines which do not intersect each other. Basically we will say that AB and CD are the two lines, suppose, and these two are said to be parallel if they never intersect each other, or we will say that if we will measure the distance between these two lines, that will always remains same, that these type of lines are known as parallel lines. Okay, the second one is a transversal. Now suppose if we have two lines here, suppose one is AB and another one is CD, and one more line we draw, suppose name it L, which intersect these two lines at a two distinct point. Suppose these points are E and F. Then this line L is known as a transversal. तो ट्रांसवर्सल की अगर हम डेफिनेशन राइट करें तो व्हाट इज अ ट्रांसवर्सल? अ लाइन व्हिच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, दैट लाइन इज नोन एज अ ट्रांसवर्सल. तो ऐसी लाइन जो दो या दो से ज्यादा लाइंस को इंटरसेक्ट करती है डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर, तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल. सो दिस लाइन L is a transversal line. Now see what are corresponding angles. So if we will discuss about here, that suppose we are having angle 1, this is angle 2, 3, 4. Suppose this one is 5, 6, 7 and 8. तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से ये 8 angles फॉर्म हो रहे हैं. तो one by one we will discuss about all these angles, what are corresponding angles, alternate angles. Just remember it properly, ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये सारे एंगल्स अभी हमारे क्वेश्चंस में बहुत काम आने वाले हैं. तो corresponding angles कौन कौन से corresponding angles होते हैं? तो I am writing a pair of corresponding angles here first of all. So this is, see what are corresponding angles. corresponding angles का अगर हम पेयर राइट करें तो corresponding angles कौन से हैं? See if angle 1 and angle 5, pair of angle 1 and angle 5, this is the pair of corresponding angles. In the same way 2 and 6, angle 2 and angle 6, 3 and angle 7, angle 3 and angle 7. Similarly 4 and 8, angle 4 and angle 8. These all are known as corresponding angles. Corresponding angles कौन से होते हैं? जो सेम साइड में फॉर्म हो रहे होते हैं. जिस तरीके से ये इसके बीच में फॉर्म है, तो ये इसी के corresponding एंगल 5 बिल्कुल सिमिलर वे में ये बन रहा होगा. तो इस तरीके के एंगल्स को जो अगर ये इस लाइन के अबव साइड है तो ये भी इसके अबव साइड में ही फॉर्म होगा. तो ऐसे एंगल्स को यहाँ अगर 2 है तो ये 6, 3 है तो यहाँ 7 and 4 is corresponding to 8. These angles are known as corresponding angles. Now for the next one is alternate interior angles. Alternate interior angles, just see the fourth part. Alternate इंटीरियर एंगल्स. अब इससे पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर इंटीरियर एंगल्स. इंटीरियर एंगल्स का मतलब क्या होता है? इंटीरियर एंगल्स वो एंगल होते हैं, इंटीरियर का मीन क्या होता है? इंटीरियर मींस दैट इनसाइड. तो जो अंदर वाले एंगल्स हैं जैसे कि 3, 4, 5 एंड 6, ये जो एंगल्स हैं इनको हम इंटीरियर कहते हैं.
बट व्हाट आर अल्टरनेट इंटीरियर, जो अपोजिट साइड्स में है, जैसे एंगल 4 एंड एंगल 6, पेयर ऑफ एंगल 4 एंड एंगल 6, these are known as alternate interior angles. Now can you tell me one more pair of alternate interior angles in this figure? Yes, we can write angle 3 and angle 5, angle 3 and angle 5. This is the pair of alternate interior angles. इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एंगल्स हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल सी, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. तो अगर हम इनकी बात करते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की, तो एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं? तो अपोजिट है टू इंटीरियर, या हम कहेंगे कि बाहर वाले जो एंगल है 1, 2, 8 एंड 7, ये चारों एक्सटीरियर एंगल्स हैं. बट इनमें से अल्टरनेट एक्सटीरियर कौन से हैं जो फिर वही अपोजिट साइड में बनते हैं, जैसे कि एंगल 1 एंड एंगल 7, पेयर ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 7, these are alternate exterior angles. Similarly 2 and 8, angle 2 and angle 8. So this pair of exterior angles are known as alternate exterior angles. Now sixth one is consecutive interior angles. इनको हम allied angles या फिर इनको co-interior angles भी बोलते हैं. अब यहाँ पर भी देखिए इंटीरियर वर्ड का यूज हो रहा है, तो इंटीरियर का मतलब इन चारों एंगल्स में से किसी की बात होगी 3, 4, 5 एंड 6 में से. बट को इंटीरियर एंगल्स जब हम पेयर राइट करेंगे तो 6th वन हमारा क्या है? को इंटीरियर एंगल्स. तो को इंटीरियर एंगल्स में जो पेयर आएगा वो एंगल 4 एंड एंगल 5 का पेयर होगा. तो सेम साइड में, इसी सेम साइड में जो बनने वाले इंटीरियर एंगल्स हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं. इसी तरीके से अनदर पेयर इज एंगल 3 and angle 6. So these two are co-interior angles. इन्हें हम allied angles या consecutive interior angles भी कहते हैं. So now we will have to discuss all the things combinedly. अब हम parallel lines में अगर transversal देखेंगे, देखिए suppose we have two lines which are parallel to each other. First one is AB and another one is CB. तो ये सपोज हमारे पास टू लाइंस हैं और इन दोनों को इंटरसेक्ट करने वाली एक लाइन हम एल ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पर E और F पर मीट करती हैं. वी हैव स्टडीड जस्ट नाउ कि ये दोनों AB और CB पैरेलल लाइंस हैं बिकॉज दे नेवर मीट ईच अदर. और इन दोनों को कट करने वाली अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए तो इसको क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल. तो ये सारे एंगल्स जो अभी हमने पढ़े वो सब इसमें भी हमें यहाँ पर स्टडी करने हैं. तो वी विल नेम it again as 1, angle 2, angle 3, angle 4. This is 5, 6, 7 and 8. So one by one we will study about the theorems of corresponding angles, alternate exterior angles, alternate interior angles, all these. ठीक है? तो first theorem we have to see one axiom. What is axioms? Axioms क्या होती हैं? ये हमने यूक्लिड डिवीजन में पढ़ा था कि एक्सियम्स जो होते हैं कुछ ऐसे प्रूवन स्टेटमेंट होते हैं जिनको हम प्रूव नहीं करते, बट इन स्टेटमेंट्स की हेल्प से हम बाकी के स्टेटमेंट्स को या बाकी थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए इन स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं. तो व्हाट आर एक्सियम्स? एक्सियम्स आर दोस प्रूवन स्टेटमेंट व्हिच यूज्ड टू प्रूव अनदर थ्योरम्स और अनदर स्टेटमेंट्स. सो सी वन एक्सियम्स वी हैव हियर. इफ अ ट्रांसवर्स लाइन्स then each pair of corresponding angles are equal. So just now we have studied what are corresponding angles. So axioms, ये axioms है, इसका मतलब हम इस स्टेटमेंट को प्रूव नहीं करेंगे, लेकिन इस स्टेटमेंट की हेल्प से बाकी थ्योरम्स को हम प्रूव कर सकते हैं. तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि जो corresponding angles आते हैं हमारे पास वो सारे आपस में इक्वल होते हैं. तो हमें इस फिगर में अगर corresponding angles की बात करनी है तो what are the pair of corresponding angles? We write angle 1 is equals to angle 5. Angle 1 और angle 5 corresponding angles है. Similarly, angle 2 is equals to angle 6 we can write. 3 is equals to 7. Angle 3 equals to angle 7 and angle 4 is equals to angle 8. तो ये जो चारों pairs of angle हैं ये आपस में
इक्वल होंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्सिम्स वी कैन से दैट एंगल 1 is equals to 5, 1 is equals to 5, 2 and 6 are equal, 3 and 7 and 4 and 8 are also equal to each other। तो अब इस एक्सियम को हम यूज करके बाकी के थ्योरम्स को यहाँ पर एक्सियम्स का अगर हम कन्वर्स की बात करें तो हमने इसमें पढ़ा था कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल इनको कट कर रही है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। बट अगर हम इसका कन्वर्स यूज करें तो हम ये कह सकते हैं कि इफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द लाइंस AB एंड CD मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर। तो इस एक्सियम का यूज करके हम इसका कन्वर्स यहाँ पर प्रूव करेंगे। सो सी हाउ वी कैन प्रूव द कन्वर्स ऑफ दिस एक्सियम्स। If the corresponding angles are equal, then the lines must be parallel to each other. So suppose what we have done, we have drawn a line AB suppose here, and we will take here 2 points C and D suppose. अब हम यहाँ पर दो एंगल्स फॉर्म करते हैं। ये दोनों फॉर्म्स करेंगे हम इस तरीके से कि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो। सपोज CE एंड DF, हमने ये ECD एंड FDB ये दोनों एंगल्स क्या करें इक्वल फॉर्म कर लिए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि वी हैव टू प्रूव दैट द लाइन EC हमने P तक और इस लाइन को हमने Q तक प्रोड्यूस किया। तो अब अगर हमने ये कंस्ट्रक्शन में ये दोनों एंगल्स इक्वल ड्रॉ किए गए, नाउ व्हेन वी विल सी दीस टू लाइंस दे नेवर मीट ईच अदर। अगर आप इनको आगे प्रोड्यूस करते जाओगे तो आप देखोगे कि ये दोनों लाइंस कभी भी मीट नहीं कर रही हैं। तो अगर ये दोनों लाइंस कभी भी मीट नहीं कर रही हैं, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। व्हाट डज इट मींस? दैट द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। इट मींस द कन्वर्स ऑफ दिस एक्सियम्स दैट इफ द एंगल्स आर इक्वल, दीस टू आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो इनसे जो लाइंस बनती हैं ये लाइंस कैसी होती हैं? दीज आर पैरेलल लाइंस। Theorem 6.2 here, if a transversal intersect two parallel lines, then each pair of alternate interior angles is equal. तो suppose हमारे पास यहाँ पर है दो parallel lines, one we name as AB and another one is CD, ठीक है? और एक ट्रांसवर्सल हमने यहाँ पर ड्रॉ किया, इसको हमने नेम दे दिया P, Q, R एंड S। ये जो ट्रांसवर्सल है वो पैरेलल लाइंस AB और CD को Q और R पॉइंट्स पे मीट कर रहा है। तो हमें प्रूव क्या करना है कि देयर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमने पढ़ा था कि व्हाट आर द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दीस टू पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर नोन एज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट गिवन। व्हाट इज गिवन हियर? AB is parallel to CD and PQRS is a transversal, ठीक है? ये एक हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन है और हमें क्या प्रूव करना है? व्हाट वी हैव टू प्रूव हियर? टू प्रूव दैट एंगल PQR is equals to angle QRC। BQR angle and QRC angle equal, and similarly we can take another pair AQR, angle AQR is equals to angle QRB, QRB। These two we have to take equal to each other। तो ये हमें दोनों चीजें प्रूव करनी है। तो यहाँ पर अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। और प्रूफ स्टार्ट करने के लिए हम इससे पहले जो हमने एग्जाम स्टडी किया था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम भी हम जिसको कहते हैं उसको हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो लेट अस सी हाउ वी विल प्रूव इट दैट these two angles are equal to each other. So first of all we will take is equals to PQ at this angle and QRC. Angle QRC both are equal to each other because we can write they are corresponding angles, and we know that due to the axioms that corresponding angles are equal to each other. तो ये दोनों आपके corresponding angles हैं इसलिए equal है
राइट कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए दिस एंगल PQA, अगेन वी आर टेकिंग द सेम एंगल PQA which is also equals to, we can write BQR angle. Why they are equal? Because they are vertically opposite angles. We have studied the concept of vertically opposite angles कि ये दोनों एंगल क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अब हमारे पास ये जो दोनों इक्वेशंस बनी है इसमें PAQ यहाँ भी है इक्वल्स टू QCR एंड PQA इज आल्सो इक्वल्स टू PQR। तो यहाँ पर ये दोनों सेम एंगल्स इन्हीं दो डिफरेंट इस एंगल्स के इक्वल है, यानी कि अगर हम यहाँ पर एक्सम यूज करें कि if two different things are equals to same then they both are also equals to each other. So we can write on comparing we can write angle QRC is also equals to angle BQR. तो आप देखिए QRC angle this one and BQR angle this one we have to equal, and similarly we can do the second part. Similarly we can also prove that these two corresponding angles named which one PQR and where we have QRD, angle QRD are also lines equal. अगर एक ट्रांसवर्सल है जो दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है such that pair of alternate interior angles is equal, then the lines are parallel. तो यहाँ पर इसका अपोजिट है, हमें ये नहीं पता है कि तो जो दोनों लाइंस है वो पैरेलल है, हमें ये प्रूव करना है कि AB is parallel to CD के। But one transversal PQRS which meets these two lines are having alternate angles equal. Suppose this angle and this angle are equal given this time. So here we will write in given here that angle BQR is equals to angle QRC. So this time these two angles are given as equal, and we have to prove here what we have to prove, that AB is parallel to CD this time. So now let us start the proof of this theorem. Here this is theorem 6.3. तो अब हम इसको फिर से सेम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी और प्रीवियस थ्योरम में इसको हम यूज करके इजीली प्रूव कर सकते हैं। सो नाउ हियर वन थिंग इज गिवन टू अस दैट एंगल BQR is equals to angle QRC. Make it equation number 1 and we can write this statement is given to us. ये वैल्यू हमें गिवन है कि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, और अब हम राइट कर सकते हैं एंगल BQR is again equals to, जो BQR एंगल है इक्वल्स टू हो जाएगा PQA के इक्वल। Why they are equal? Because they are corresponding angles. Sorry, these are vertically opposite angles. Just see this BQR and PQA, these both are vertically opposite angles. ठीक है? Now if we will compare these two equations, equation 1 again BQR we have on the left side of both the equations. So what we can write, angle QRC is equals to angle PQA are equal. But which type of angles these two have? ये कैसे angles हैं? But these two are corresponding angles. We can write, but they are corresponding angles. किस तरीके के एंगल्स हमारे पास हैं? These two are corresponding angles. और अगर corresponding angles equal होते हैं तो हमने एक्चुअली इसका रिवर्स क्या पढ़ा था? If the corresponding angles are equal, this implies lines must be parallel. That means we can say AB is parallel to CD. Hence, so students, let us discuss about theorem 6.4. It says that if a transversal intersect two parallel lines, then each pair of interior angles on the same side of a transversal is supplementary. So we have already discussed about the transversal and transversal के बारे में हम लोग already study कर चुके हैं. If we have two lines AB and CD, suppose are parallel, and we have a transversal, we have named it P, Q, R and S. So what this theorem says, then each pair of interior angles on the same side of transversal, interior angle जो
इंटीरियर एंगल्स सेम साइड में फॉर्म होते हैं, तो ये दोनों इंटीरियर एंगल्स है जो सेम साइड में फॉर्म हो रहे हैं, इफ यू विल नेम इट वी कैन सी दैट एंगल बी क्यू आर एंड प्लस एंगल क्यू आर डी, एंगल क्यू आर डी, इन दोनों का सम जो होता है वो सप्लीमेंट्री होता है, यानी कि इन दोनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। इन दोनों एंगल्स को हमने पढ़ा था कि these two are also known as co-interior angles। तो co-interior angles का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। This we have to prove here। तो first of all we will write here given what is given to us that AB is parallel to CD and here we can write PQRS is a transversal। ये भी हमने इसका ट्रांसवर्सल एंड PQRS इज अ ट्रांसवर्सल हमने इसका एक ड्रॉ किया है। एंड व्हाट इज वी हैव टू प्रूव नाउ, टू प्रूव दैट सम ऑफ द एंगल BQR प्लस एंगल QRD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये पार्ट हमें यहाँ पर प्रूव करना है, BQR प्लस QRD इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो वी विल नॉट डू एनी कंस्ट्रक्शन हियर, वी विल स्टार्ट डायरेक्टली प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए ट्राई करते हैं कि दो एंगल्स का सम हमारे पास 180 डिग्री होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू विल सी दैट AQB, व्हाट इज AQB? AQB इज अ स्ट्रेट लाइन, वी कैन राइट इट इज अ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये दो एंगल्स क्या फॉर्म करेंगे, AQR एंड BQR। तो we can write that sum of angle AQR plus angle BQR, the sum of these two angles is 180 degree because they forms a linear pair। क्योंकि linear pair बनाती है तो इन दोनों एंगल्स का सम हमारे पास कितना होता है, 180 डिग्री होता है। But after this what we can use here, see what is angle AQR equals to, this AQR is alternate angle to QRD, तो we can write that is equals to QRD। तो अभी हमने alternate angles की थ्योरम स्टडी की थी, तो और हमने ये पढ़ा था कि if lines are parallel then their alternate interior angles are equal। तो AQR and QRD are alternate interior angles, so we can write here alternate angles। तो ये दोनों alternate angles हैं, इसलिए ये दोनों इक्वल हैं। तो अब हम इस BQ जो हमें प्रूव करना था उसमें BQR एंगल तो हमें चाहिए, तो अब हम इसमें AQR के प्लेस में क्या पुट कर सकते हैं, इन प्लेस ऑफ दिस AQR वी कैन पुट QRD। तो अब हम इस इक्वेशन नंबर 1 में, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ AQR, तो AQR के प्लेस में हम क्या रखते हैं, हम राइट कर रहे हैं QRD, एंगल QRD प्लस दिस एंगल इज एंगल BQR इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यही हमें प्रूव कर रहा था, QRD एंगल प्लस BQR एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इट मींस द थ्योरम इज दैट इफ टू लाइंस आर पैरेलल एंड वी हैव अ ट्रांसवर्सल then the sum of co-interior angles is equals to 180। तो co-interior angles जो इंटीरियर में बनते हैं और दोनों सेम साइड में होते हैं, इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब अगर हम इसी के कन्वर्स की बात करें, if we find out the converse of this theorem, what is the converse of this theorem can be, if the sum of the co-interior angles is 180 degree, so suppose see again AB and CD are the two parallel lines and we have a transversal again, suppose PQRS we say this line is CD, and if it is given that the sum of these two angles which are co-interior angles, so what we will write in given here, the given is now angle BQR plus angle QRD, the sum of these two angles is suppose 180 degree, then we have to prove here and we will prove that the line AB is parallel to CD। तो हमें इसका कन्वर्स करना है कि अगर कोई इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो दोनों लाइंस पैरेलल भी होती हैं।
तो अगेन वी नीड नॉट टू डू एनी कंस्ट्रक्शन हियर, बट हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं, देखिए किस तरीके से आप इसको कर सकते हो। सपोज वी विल टेक एनी वन ऑफ द एंगल इज एक्स। सपोज हमने इस एंगल को कितना कंसीडर कर लिया, एक्स कंसीडर कर लिया, एंड इट इज गिवन दैट BQR plus QRD equals to 180, angle BQR plus angle QRD is equals to 180 degree। अब अगर हम इसमें ये जो हमने QRD एंगल को x लिया ये पुट कर देते हैं, तो एंगल BQR plus in case of this QRD what we can put x is equals to 180 degree। ठीक है, what is angle BQR? How much is angle BQR? That is 180 minus x। Make it equation, any equation here, suppose it is equation number 1। तो BQR जो एंगल हमारे पास आ गया, यानी कि ये वाला ये एंगल आ गया हमारे पास 180 माइनस एक्स। तो वैसे भी हम डायरेक्टली भी राइट कर सकते थे, बट वी हैव टू शो इट लाइक दिस कि अगर ये एंगल x है तो ये वाला एंगल 180 माइनस एक्स होगा। अभी हमने थ्योरम में पढ़ा था। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं इसका ये एंगल, दिस वन PQB। तो PQB को फाइंड आउट करने के लिए आप लिखिए सिंस एंगल PQB प्लस एंगल BQR इज इक्वल्स टू 180। तो देखिए PQB प्लस BQR, the sum of these two angles will be 180 because they forms a linear pair। तो ये एक लीनियर पेयर बनाते हैं, इसके दोनों का सम 180 अगेन होगा। तो एंगल PQB हम फाइंड आउट कर रहे हैं और इसको हम ऑलरेडी राइट कर चुके हैं 180 माइनस एक्स, and it is equals to 180 again। So what is angle PQB? PQB is 180। अगर इन दोनों एंगल्स को शिफ्ट कर देंगे माइनस 180 plus x, we can write this 180 and this 180 can be cancel out here। तो what is angle PQB है? तो PQB ये वाला जो एंगल आ गया ये भी हमारे पास x आ चुका है। तो अब आप देखिए जो दो एंगल हमारे पास हैं x कौन कौन से आए हैं। One is angle we have written PQB, just now we have calculated it x, and QRD already we have taken QRD equals to x। But these two are which type of angles? These two are corresponding angles, but they are what we can write corresponding, but they are corresponding angles। अब अगर हमने पढ़ा था कि corresponding angles equal होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती है। दिस इज द कन्वर्स ऑफ दैट एक्सियोम व्हिच वी हैव स्टडीड, दैट इफ द लाइंस आर पैरेलल देयर corresponding angles are equal, and this converse is that if the corresponding angles are equal then the lines are parallel। So this implies we can write AB is parallel to CD। तो AB और CD लाइंस को हम पैरेलल टू कर सकते हैं। ठीक है, तो these are some of the properties of alternate interior angles, co-interior angles which you have to use in the questions। तो आप इस तरीके से आप इन सारी प्रॉपर्टीज को क्वेश्चंस में एक्सरसाइज 6.2। The first question is in figure 6.28 find the value of x and y and then show that AB is parallel to CD। तो इससे पहले भी हम ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं कि अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, व्हाट आर अल्टरनेट एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, एक्सटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप इन्हीं के बेसिस पर आज इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे। तो इन फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो ये फिगर जो है हमारे पास गिवन है, इसमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और प्रूव करना है लास्ट में दैट AB इज पैरेलल टू CD। AB और CD पैरेलल है, ये भी प्रूव करना है और x और y की वैल्यूज भी हमें यहाँ पर इक्वेट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल if we want to find out angle y, so we can write angle y is equals to angle equals to 130 degree। Just see this कि हम एंगल y और ये जो एंगल हमारे पास है, सपोज इसको कोई नेम हम दे देते हैं ABCD अगर हमने ये कहा है, सपोज दिस इज PQR एंड S इफ वी टेक हियर। तो व्हाट वी कैन राइट, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वी विल राइट हियर एंगल QRD इज इक्वल्स टू एंगल CRS। QRD जो एंगल है वो हमारे पास है QRD इज y, यही हमने फाइंड आउट करना है।
और CRS एंगल इफ यू विल सी दिस इज 130, तो 130, और इसका रीजन हम दे सकते हैं कि these two are vertically opposite angles। तो ये दोनों एंगल्स जो हमारे पास हैं ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए एंगल y इज 130 डिग्री। अब एंगल x को फाइंड आउट करने के लिए इधर से देखिए एक प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज करते हैं, राइट, सिंस एंगल PXA, see this angle PXA plus angle AQR, this angle, sum of these two angles will is equals to 180 because they forms linear pair। तो आपको ये रीजंस लिखने जरूरी है कि हम इनका सम 180 क्यों लिख रहे हैं, या हम ये दो एंगल्स इक्वल क्यों राइट कर रहे हैं, बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और यहाँ पर इन दोनों का सम 180 से लिख रहे हैं क्योंकि ये लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। तो व्हाट इज PXA, सी इन फिगर PXA is 50 डिग्री, so we can write here 50 plus this AQR is angle X which we have to find out, and their sum is given to us 180. So what will be the angle X here? 180 minus 50, we can write X is equals to 130 डिग्री। तो हमारे पास एंगल X की वैल्यू आ गई है 130, एंगल Y भी हमने फाइंड आउट कर लिया है 130। अब ये जो एंगल X हमने फाइंड आउट किया है और ये वाला एंगल देखिए, these two are corresponding angles। Let's see now if since AQR is equals to angle CRS, देखिए ये दो एंगल्स हमने फाइंड आउट, एक तो हमें ऑलरेडी गिवन है और एक हमने फाइंड आउट किया है, और ये दोनों एंगल्स हमारे पास कितना है 130, दिस इज ऑलरेडी गिवन 130, और ये हमने 130 यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट कर रखी है। तो अगर हम इन दोनों को इक्वल राइट कर पा रहे हैं तो वी कैन राइट, बट दे आर विच टाइप ऑफ एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो जो दो लाइंस जिनसे ये एंगल फॉर्म हो रहे होंगे वो दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं। तो व्हाट वी कैन राइट हियर, दिस इंप्लाइज AB is parallel to CD, this we can write with the help of this condition because these two angles are equal to। Question number 2 in figure 6.29, if AB is parallel to CD, तो राइट करते हैं AB is parallel to CD, first condition is this is given to us, given में आप राइट कर सकते हो, and CD is parallel to EF, AB CD के पैरेलल है और CD लाइन EF के पैरेलल है, और one more thing is given here, Y ratio Z, Y ratio Z is 3:7, then we have to find out angle X। तो अगर आपको AB और CD जो लाइंस हैं वो पैरेलल गिवन है तो इन दोनों एंगल्स जो X और Y यहाँ पर मार्क किए गए हैं, ध्यान से देखिए, सपोज इसको हम P, Q, R, S और T फिर से नेम दे देते हैं, तो हमारे पास जो एंगल्स आएंगे सॉल्यूशन देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं एंगल AQR प्लस एंगल QRC। जस्ट सी दीज टू एंगल्स, जिन एंगल्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो एंगल X और Y हैं। अगर ये AB और CD लाइंस पैरेलल हैं, सो दिस QRST these are transversal, so these two angles are known as co-interior angles, और इन दोनों का सम हमें पता है कि कितना होता है 180 डिग्री है। तो why they are 180? because they are co-interior angles, we have to write this co-interior angles हैं, इसलिए इनका सम हम 180 राइट कर सकते हैं। What is AQR? we can write it X, QRC is Y, और इन दोनों का सम है 180। अब देखिए यहाँ पर जो रेशियो है वो Y और Z का हमने गिवन था, और अगर हम इस Y और Z की बात करें तो हम एंगल Y को कंसीडर कर सकते हैं 3x, दैट एंगल Y is equals to 3x एंड एंगल Z is equals to 7x। Y और Z को हम यहाँ पर ये एंगल्स कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन एंगल Y एंड Z हियर? तो अगर इस एंगल की बात करें, देखिए दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दोनों भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे।
हम राइट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, सिंस एंगल QRC इज इक्वल्स टू एंगल BRS, और रीजन हम दे सकते हैं बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हम इस एंगल को भी कितना राइट कर सकते हैं, वी कैन राइट इट इक्वल्स टू y। तो यहाँ पर ये एंगल भी हम y राइट कर सकते हैं। तो जिस तरीके से हम यहाँ पर एक इक्वेशन हमने ये फॉर्म की थी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180, यहाँ पर एक इक्वेशन और हम फॉर्म कर सकते हैं कि सम ऑफ दीज टू एंगल्स y प्लस z बिकॉज दे आर ऑल्सो को इंटीरियर एंगल्स, तो इन दोनों का सम भी यहाँ पर कितना होगा, 180 होगा। तो वी कैन राइट y प्लस z इज इक्वल्स टू 180, और रीजन इज अगेन दे आर को इंटीरियर एंगल्स, and we know the sum of co-interior angles is equals to 180. अब y और z हमने कंसीडर कर लिए थे 3x और 7x, तो स्टार्ट राइट करते हैं। सी दिस साइड, तो हमारे पास y प्लस z इज इक्वल्स टू 180 है, तो हम राइट कर सकते हैं 3x प्लस दिस 7x इक्वल्स टू 180, और वी कैन राइट 10x इज इक्वल्स टू 180 which gives x इक्वल्स टू 18 डिग्री। तो x अगर हमारे पास 18 आ गया है, तो इसकी हेल्प से हम एंगल y और एंगल z को फाइंड आउट कर सकते हैं। व्हाट इज एंगल y हियर, y इक्वल्स टू हियर 3x, तो 3 into 18 दैट इज 54, और एंगल z अगर हम फाइंड आउट करें तो 7 into 18, 7 8 is 56, 7 which is 7 plus 5 12, 126 is एंगल z। अब अगर हम इनमें से y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, तो हम यहाँ से इजीली x एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि अब इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना था। तो हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो वी हैव x प्लस एंगल y इज हाउ मच, 54 इज इक्वल्स टू 180। What we can write to this angle 180? Let's see this. So angle x is equals to 180 minus 54. So x equals to how much? 10 minus 4 is 6, 7 minus 5 is 2, and 126 degree. So angle x is also 126 degree, and angle z is also 126 degree. Now see students, question number 3 here. In figure 6.30. If AB is parallel to CD, these two lines are parallel given to us. EF is perpendicular to CD. तो ये एंगल आपको कितना गिवन है? This angle is of 90 degree. And angle GED. Now see angle GED. This complete angle is also given to us. This is 126 degree. तो find angle, जो एंगल्स हमें फाइंड आउट कर देते हैं, राइट कर लेते हैं। AGE हमें फाइंड आउट करना है, then angle GEF हमें फाइंड आउट करना है, एंड एंगल FGE। These three angles we have to find out with the help of this figure. Angle AGE. See this angle AGE is this one, first one which we have to find out, angle 1. GEF is this one which we have to find out, angle 2 suppose, and FGE is this one, third one which we have to find out. These three angles we have to find out. So we will write in given that AB is parallel to CD. Also we have FE is perpendicular to CD. So according to this we have written this angle is 90 degree. तो इसके हमने यहाँ पे क्या लिखा था, FED angle is equals to 90 degree. अब let us see this complete angle GED. एंगल GED जो हमारे पास है, that is equals to the sum of these two angles. एक इसको और इसको जब हम प्लस करेंगे तब ये कंप्लीट एंगल हमारे पास बनता है। तो एंगल GED को हम राइट कर सकते हैं एंगल GEF प्लस एंगल FED. See in the figure, we can write this whole angle GED is equals to sum of this GEF plus FED. तो यहाँ पर GED हमें कितना गिवन है, GED is given to us 126 डिग्री,
और इसको हमने एंगल 2 अगर मान लिया है, या इसको ऐसे छोड़ दीजिए, एंगल GEF प्लस FED is how much? This is equals to 90 degree. Angle GEF we can find out from here, that is 126 minus 90. How much is left? This is 36 degree. तो हमारे पास जो सेकेंड एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया, ये मिडिल वाला एंगल, इट इज इक्वल्स टू 36 डिग्री। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं अदर एंगल्स के लिए। तो आप ध्यान से देखिए, तो ये वाला जो एंगल हमारे पास होगा, हाउ मच इज दिस वन? दिस वन इज ऑल्सो ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि ये दो लाइन्स अगर पैरेलल है और ये एंगल अगर 90 है, तो ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो हम इसको राइट कर सकते हैं, हाउ मच? दिस एंगल GFE इज ऑल्सो ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, तो आप राइट कर दीजिए, एंगल GFE इज इक्वल्स टू एंगल FED इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। गॉट इट? अब आप इसमें यूज कर लीजिए GEF ट्राइंगल को। नाउ in triangle GEF, what we have a property that the sum of all the angles of any triangle is equals to 180 degree. तो अब आप यहां से राइट कर सकते हैं सम ऑफ एंगल GFE प्लस एंगल FEG प्लस एंगल EGF। EGF भी राइट कर सकते हो, या FGE भी इसको हम राइट कर सकते हैं, और इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। Why they are 180 degree? Because the sum of interior angles of a triangle is 180 degree. अब वैल्यूज रखते हैं, GFE is how much? GFE, see this one, this we have said 90 degree plus FEG की अगर हम बात करें तो ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, हाउ मच? 36 डिग्री। 36 डिग्री हम इसको रख देंगे, और FGE जो एंगल है वो हमें फाइंड आउट करना है, तो दिस इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। तो 90 प्लस 36 126 अगेन, प्लस एंगल FGE इज इक्वल्स टू 180। व्हाट वी कैन राइट टू एंगल FGE हियर? FGE को राइट कर सकते हैं 180 माइनस 126। 180 में से 126 माइनस कर दीजिए, 10 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 4 हियर, 7 माइनस 2 इज 5, दैट इज 54 डिग्री। तो एंगल FGE व्हाट वी हैव, हाउ मच? 54 डिग्री। सो दिस इज द थर्ड वन एंगल व्हिच वी हैव टू फाइंड आउट। तो ये दो एंगल्स हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो हमारे पास ये वाला एंगल आ चुका है, कितना? हाउ मच? वी हैव 54 डिग्री, and this angle we have calculated 36 degree. Now one more angle AGE also we have to find out, and that we can find easily. Now how we will use the condition to find out AGE angle? Just see, angle AGE plus angle AGE plus FGE, angle FGE is equals to again 180 degree, because they forms a लीनियर पेयर। तो ये दोनों जो एंगल्स हैं वो लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। तो अब आप AGE फाइंड आउट कर लीजिए, AGE प्लस दिस वन इज 54 we have calculated equals to 180. How much is angle AGE here? That is 180 minus 54. 180 minus 54, 10 minus 4 is 6. Here we have 7 minus 5 is 2, again 126. तो ये एंगल भी हमारे पास कितना आ गया? 126 डिग्री आ गया। See students, question number 4. In figure 6.31, this type of figure is given to us if PQ is parallel to ST. See this PQ and ST, these two lines are parallel to each other. This is given to us. तो राइट कर लेते हैं यहाँ पर given statements जो भी हमें given है पहले। PQ is parallel to ST. First one, angle PQR. If we see this angle PQR is this one. Angle PQR is equals to 110 degree. Now and
angle RST, one more angle RST, this is given to us 130 degree. Angle RST is equals to 130 degree. Then we have to find out angle QRS. So QRS is this angle which we have to find out. Suppose this is x है, तो इस x को हमें यहाँ पर find out करना है. So these things are given to us. Now we will start the solution of this question. For this question we have to do one construction here. तो इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन यहाँ पर करेंगे कि आप एक R पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ऐसी ड्रॉ करिए जो कि PQ और ST दोनों के लिए पैरेलल हो, बिकॉज दे बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर. ठीक है, तो अगर हम एक के पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली दूसरी लाइन के पैरेलल अपने आप ही हो जाएगी. और इसको हम नेम दे देते हैं सपोज A B. वी हैव टू राइट हियर कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, ड्रॉ AB फ्रॉम पॉइंट R parallel to PQ and ST. अब PQ और ST ये दोनों के पैरेलल होगा, आप समझ रहे होंगे, क्योंकि अगर हम एक के पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली दूसरी लाइन के अपने आप ही पैरेलल हो जाएगी. तो इस तरीके से यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन हमने कर दिया. ठीक है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ST थ्रू पॉइंट R. तो आपने इस तरीके का एक कंस्ट्रक्शन यहाँ पर कर लिया. ये हिंट भी आपको क्वेश्चन में दी हुई है, तो इसी हिंट को हमने यहाँ पर यूज करते हुए एक पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट कर ली है. अब हमारे पास कुछ एंगल्स हैं यहाँ पर. 110 डिग्री इज दिस वन, 130 इज दिस वन. तो विद द हेल्प ऑफ दिस 110 वी कैन फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल दिस एंगल, बिकॉज दे बोथ आर को-इंटीरियर एंगल्स. तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180. तो हम इसमें से इसको माइनस करके ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं. सिमिलरली दिस 130 और ये वाला जो एंगल होगा ये अगेन को-इंटीरियर एंगल्स है, तो इनका सम भी 180 आएगा. फिर 180 माइनस 130 करके हम ये वाला एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं. और फिर ये पूरा जो है स्ट्रेट लाइन है, तो सम ऑफ ऑल दीस थ्री एंगल्स इज इक्वल्स टू 180. तो इस तरीके से हम पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट एंगल PQR प्लस एंगल QRA इज इक्वल्स टू 180. और आप ब्रैकेट में लिख देंगे दीज आर को-इंटीरियर एंगल्स. तो को-इंटीरियर एंगल्स हैं, इसलिए इन दोनों का सम हमने